Namaskar, hello, welcome, adab, sat shri akal. Welcome to this edition of Hotspot brought to you by JB Power Consultant. I am Rahul Srivastav. Today, I have a leader on the hotspot with me who, from his birth in his youth, did almost everything right. College school topper, CBSE topper, college topper. But since then, he has been trying to create the right blend of like-minded people to come together to take on the political right. The only thing is that sometime in the mid-70s, he turned left. I have Comrade Sitaram Yechury, CPM Big Boss with me. Sita, welcome to the show, Hotspot. Thank you. You seem a bit relieved, but not totally relieved, because I think what has happened, there might be multi-million interpretations of this election result. I think what has happened, that the voter in India realized that there needs to be an opposition. It has voted for an opposition. It has not really voted the government out. Well, in the sense that it did not give the BJP a majority in its own, which it gave last two times. The fact that it did not give it a majority in its own, it wanted, the voters wanted, I think, that the BJP should also be kept under a leash. And that was, I think, a very interesting and a very significant perception. Because that the Modi government was going out of the leash, uncontrollable, was a feeling that the people had which needed to be reversed. Now that is a very important factor for the future. Yes, opposition. And therefore, if that had to be done, opposition will come. But the fact that no government should be allowed a free hand and with uncontrollable, with no unfettered power. So that is a very important consideration in politics. But don't you agree that this is the wisdom of the Indian voter? Yes, it is. It is the wisdom of the Indian voter. We appealed. It's not necessary that they should have followed that appeal. We appealed the earlier elections also. But the fact that they followed it this time, I think their own experience has also shown in these 10 years. I mean, how things were just, I mean, the government was going roughshod over their lives. Whether it's demonetization, GST, and after that the pandemic, the manner in which the migrants were handled. I mean, all these things were issues on which there was a one-way traffic of government decisions, irrespective of what would be people's considerations. Comrade, एक चीज हिंदुस्तान में देखी गई है कि जनता की कैपेसिटी टू टेक पनिशमेंट ऑफ दिस काइंड अमेजिंग है. यानी गरीबी हटाओ के 40 साल बाद भी गरीबी नहीं हटती है, लोगों को पानी नहीं मिलता है, टॉयलेट्स नहीं है, लेकिन जनता उतना नाराज नहीं होती. आई थिंक मेरा एक, आई डोंट नो हाउ मच यू एग्री विद इट, इंडियन वोटर लव्स द अंडरडॉग. उसको अंडरडॉग पसंद है. 2014 में नरेंद्र मोदी, यूपीए के भ्रष्टाचार, तमाम चीजें, 2019 में पाकिस्तान का अग्रेशन, बट 5 सालों में जो सरकारें गिराई गई, पार्टियां तोड़ी गई, एमपीज को लाया गया, वो एक एरोगेंस जो था सरकार, बिल्कुल वही मैं कह रहा था, वो बीजेपी स्टॉप बीइंग द अंडरडॉग. डू यू एग्री? एब्सोल्युटली. और उसी पर अंकुश लगाने के लिए लोगों ने इस तरीके की वोट डाली. मतलब जो बात मैं पहले कह रहा था वो यही है कि बिना अंकुश के जो सरकार जो चल रही थी, अपनी मनमानी जिस तरीके से वो चलाते रहे, उसके ऊपर अंकुश लगाना, वो एक लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आया. और वो नतीजा साफ है इस चुनाव के नतीजों से. और देखिए, 63 सीट हारना बीजेपी को मामूली बात नहीं है. 63 सिटिंग सीट. बट व्हाई डू यू से मामूली बात नहीं है? व्हेन यू, जब आप इलेक्शन में गए थे, इलेक्शन से 10 दिन पहले,
lot of you had an assessment that things are not going right for the BJP. No, we did. तो We had आप अचंभित क्यों हैं कि बीजेपी को 60-65 सीटों का क्योंकि नुकसान हुआ? वो क्या क्या ट्राई नहीं किया, अपोजिशन पार्टीज को तोड़े, सीबीआई को और ईडी को वेपनाइज किया, और किसी के भी खिलाफ वो जाना चाहते तो उनके ऊपर केस दर्ज दी, कानून को ऐसे बदल दिया यूएपीए एंड पीएमएलए कि आपको बेल की भी गुंजाइश नहीं है, एक बार गिरफ्तार कर लो, क्यों गिरफ्तार हो रहे हो वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरीके की कारनामे शुरू हुई, उसके बाद हर स्टेट के अंदर जो भी उनके खिलाफ वोट डालने की या उनके खिलाफ होने की जो गुंजाइश रखते थे, उनको या खरीद कर अपनी तरफ लेना या धमकी पे उनको जो है बिठा देना, यह हर स्टेट में हुआ। और उसके बाद बेहद पैसे की प्रभाव, जिस तरीके से पैसे का उनके ऊपर प्रभाव था और प्रशासन का, तो ये सब फैक्टर्स जो है वो अपने आप में ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा अड़चन था, अभी भी है, मतलब वो तो अड़चन है। तो इसके बावजूद 63 सीट उनका गिरना, वो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात। मगर 63 से ज़्यादा भी गिर सकता था, मगर उस ना गिरने में सिर्फ जनता को दोष मत दीजिए, ईडी को मत दीजिए, कहीं आपको नहीं लगता कि योर आर्मरी लैक्ड दैट कोहेशन? नो, इन द सेंस, देखिए हम जब आप इलेक्शन टाइम में अच्छी बातें करते हैं, कोalition वालों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपको यानी यू आर द लास्ट ऑफ द रोमांटिक्स। नो, जो कि सेकंड फ्रंट बनाता है, थर्ड फ्रंट बनाता है। देखिए, ये वास्तविकता को समझते हुए ही ये भी समझ लीजिए कि जो आप कह रहे हो अभी बात, वो एक रियलिटी है जिसको हमें समझना है। ये एक तरीके की कोएलिशन ऐसा कोएलिशन नहीं है कि लाइक माइंडेड पार्टियां हैं जिनके एजेंडे मोरलेस एक तरफा है और उसके आधार पर वो कोएलिशन में है, वो नहीं था। डिस्परेट पार्टीज थे, है अभी भी। अब उनको अगर आपको जोड़ कर रखना इंडिया ब्लॉक में, तो एक ही रास्ता था जो हमने सोचा, पहले दिन से हम कहते आ रहे थे। देखिए, आप ऑल इंडिया लेवल पर अपने प्रचार के लिए मुद्दे उठाइए, साथ रहिए, मतलब प्रोग्राम्स करिए वगैरह वगैरह, लेकिन जहाँ तक सीटों का बंटवारा हुआ, वो सीटों का बंटवारा सिर्फ राज्यों के स्तर पर ही संभव हो सकता है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। आपकी बेंगलोर मीटिंग में यही डिसीजन। तो ये फाइनली जब बाकी लोगों ने मान लिया तो ये बात, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है नज़र आ रहा। अब जैसे यूपी के अंदर जो बेसिकली है कांग्रेस एसपी के बीच में, महागठबंधन बिहार के अंदर, या आपके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में, इन सब का फ़ायदा तो मिला है ना सब, बिल्कुल ये आघाड़ियाँ बनने की वजह से। और ये नहीं, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ है, प्योरली स्टेट लेवल पे हुआ। इसका नुकसान बंगाल में हुआ है। बंगाल में कैसे नुकसान हुआ? बीजेपी को नुकसान हुआ। नहीं, आप बीजेपी आप लोगों से तो आगे रही। अगर आप इकट्ठे, 1 मिनट, अगर एंटी बीजेपी वोट, नॉन बीजेपी वोट, लेट्स से नॉन बीजेपी वोट एक होता तो क्या होता? नहीं, नॉन बीजेपी वोट क्या है? टीएमसी कांग्रेस से यही। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी इकट्ठा हो जाते, टीएमसी की वहाँ की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, ये आप भी मानते हैं पूरा, सब सीटें ज़्यादा ले गए। हाँ, सुनिए ना, अगर हम सब इकट्ठा होते हैं तो पूरा एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा बीजेपी को जाता ना, तो उल्टा होता नजर। यही तो इसलिए तो कहते हैं हम कि राजनीति गणित नहीं है, राजनीति है, गणित है। राजनीति में 2 और 2 को साथ रखो तो 4 भी बन सकता है, 22 भी बन सकता है, 0 भी बन सकता है। तो राजनीति को गणित के हिसाब से बदलनी चाहिए। डू यू थिंक इट कुड हैव बीन बेटर? यानी कोइंसिडेंटली हम ऑलमोस्ट एक पीरियड में बैठ रहे हैं जब पहली आपकी जून में मीटिंग हुई थी पटना में, उसके अंतराल में अभी आप देखें तो क्या कुछ बेहतर हो सकता था? बेहतर ये हो सकता था कि आपको स्टेट लेवल पर जो आपके अंतर्विरोध रहे, देखिए कांग्रेस के बीच में, टीएमसी के बीच में, हमारे बीच में, टीएमसी के बीच में बहुत बड़ा तनाव की परिस्थिति है बंगाल के अंदर। और ये परिस्थिति मतलब सुधारना तभी संभव हो सकता है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, वो तो नामुमकिन था। तो इस तरीके की परिस्थिति वहाँ पर उभरना मतलब था ही, तो मतलब
कतई होना था। वैसे ही आपके केरल के अंदर देख लीजिए, वो तो परंपरागत वो कांग्रेस सीपीएम के बीच में चलती आ रही और वही हुई है। यहाँ पर इन चीज़ों को आपको अगर सुधारना है, सुलझाना है, तो समय लगेगा। एक ही चुनाव के अंदर ये हो नहीं पाएगा, और वो समय कितना लगेगा मतलब उसके बारे में अंदाज़ लगाना भी मुश्किल है। लेकिन अब आज की हालात में, परिस्थिति में, जो ठोस जो परिस्थितियां हैं इन प्रांतों में, उस हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग बनी, हम समझते हैं कि एक ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग बनी। इससे बेहतर हो सकता है डेफिनेटली, और ये बेहतर हो सकता था कई सारे आपके दक्षिण के स्टेटों में, और वहाँ पर जो मतलब गलत अंदाज लगाइए, गलत असेसमेंट लगाइए मतलब लोगों की, जो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ थी उड़ीसा सहित, उनकी जो असेसमेंट थी वो तो बिल्कुल गलत साबित हुए, या वाईएसआर कांग्रेस की जो थी आंध्रा में। तो अब ये गलत असेसमेंट दूसरे पार्टियों के चलते हुए उसका भी असर पड़ा। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ जुड़े, वो नहीं चाहते थे कि आप मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोले पार्लियामेंट में, मतलब उनके साथ भी रहे, इंडिया के साथ भी ना आए, लेकिन अब सब जगह पर अपना टांग अड़ाकर सब जगह से फ़ायदा उठाना तो संभव नहीं है। ये इंडिया जो आइडिया, ये आपका, आप इसके, यू आर द फादर ऑफ इट। Amongst the No, it came from you. The name came from you. No, it was slightly something different. Yeah, I said we for India. We for India. And I said I had the younger generation in mind. So I said we should give them a acronym. Hashtag we for India. Okay. So then they, if this is a very good hashtag, so if India is being used, then why not use India itself? Then the whole discussion went on. What does You've got onto this hashtag thing. I'm trying to get on, trying to understand the younger generation. Have you posted a tweet yourself sometime? I mean, I compose it most of the time. Technically posting it. हाँ, वो अंग्रेजी अच्छी होने का स्टीफन्स का होने का ये फायदा है कि अंग्रेजी कम से कम यानी बाकी सबसे अच्छी हो जाती है. Now, then how did India come about? It said we for India. Okay. India is there already. Okay. So instead of that, fine, it's a good hashtag. वो सुना है, मगर आपका जो लेटेस्ट चेला है उसने कहा कि इंडिया होगा. कौन चेला भाई? वो लेटेस्ट चेला जो है आपका आजकल, सुना है कि यानी as far as the basic understanding of larger political views goes, Rahul Gandhi depends on Sitaram Yechuri. अरे नहीं, we are colleagues, co-workers. I mean, we exchange opinions. I mean, beyond that, to say that one depends on the other, that would not be fair. Has the Congress, via Rahul Gandhi, become more open to what perhaps Congress at one time was, or what the left has been talking about for a long time? क्या ऐसा हुआ है? Yes, they are more amenable to ideas that are coming outside of the Congress. More amenable. That is very distinctly. कोई उदाहरण? यही सजेशंस कि अब आप किस तरीके से, जैसे प्रपोजल्स आए, 5 सवाल हमें उठाना है, 5 में से कौन से होंगे, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज? तो आई मीन यू नो लाइक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी रहेगा, लाइक यू से रिवर्ट बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम. So how do you shortlist the 5? वो shortlisting the 5 में they are, I mean, Congress is much more accommodative. This time. This time. वो यानी वो all that past, the swagger of the big party wasn't there. पहले ये होता था कि अपना ही ये टाइप शीट लेके ले आते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, बोला बताइए इस पे क्या है. लेकिन अब वो नहीं, अब ये है it's open for suggestions, which is good, which is really helping the a more sustainable. No, but who is driving it? Is it some think tank in the Congress? Is it a Kharge? Or is it that Rahul Gandhi is now bringing a new... Rahul Gandhi has assumed a certain degree of leadership, and particularly after both these Jodo Yatras, there's a degree of, I must say, maturity and understanding and accommodativeness. Because I think the Yatras have taught him of listening to the people, listening to their, what they have to raise. And that is very important in politics. You know, that sense of entitlement जो पहले उनका था, तो वो एक वन वे ट्रैफिक रखते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो इट शुड बी एक्सेप्ट. आज प्रधानमंत्री ने ओपनिंग संदेश में अपने अपील करी विपक्ष से और सबसे कि हाउस को चलाएं, और ये गौरव का विषय है कि 60 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि
थर्ड टर्म की कोई सरकार आ रही है, उन्होंने ये भी कहा कि जनता को विपक्ष से उम्मीद थी कि वो अच्छी तरह हाउस चलाएगा, और विपक्ष ने निराश किया है। अच्छा, तो पहली आप बात लोग तो बहुत निराश करते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि तीसरी बार कोई सरकार लौट के आई, वो सरकार लौट के नहीं आई जो पहले 2 बार थी। हाँ, प्रधानमंत्री वो आ गए लौट के, लेकिन सरकार इस बार आई है एनडीए की, वो बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये फ़र्क समझिएगा। पिछले बार तीनों बार जब आई थी, नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। अरे राजा एक पहली बार बना जवान था, दूसरी बार थोड़ा मिडिल एज हो गया, अब की बार बूढ़ा हो गया, तो अब ये थोड़ी कहेंगे कि राजा राजा नहीं रहा। नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं हम, ये कहना कि वही सरकार लौट आई तीसरी बार, वो सरकार नहीं आई। ये कहो कि सेनाधिपति आ गया, हाँ, मतलब वो सेना बदल गई लेकिन सेनाधिपति आ गया। Did you talk to, जब रिजल्ट आया तो आपने बात करी? चंद्रबाबू नायडू पुराना दोस्त है। हाँ, बात तो की उनको, तो अब उनकी वहाँ पर तो ये कंपल्शन रहा YSRP कांग्रेस के खिलाफ जाने की। लेकिन प्रधानमंत्री जो आज बोले, जो सवाल आपने पूछा विपक्ष वाले, तो पहले भाई ये आश्वासन दे कि 150 MPओं को सस्पेंड नहीं करेंगे। सस्पेंड कर दोगे 150 और बाद में कहेंगे हम चाहते हैं कि चर्चा हो पार्लियामेंट में, कैसे संभव बताइए आप इतने सालों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हो आप, अगर हमें सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा, अगर सवाल मैं पूछूं तो वो कहेगा कि सवाल क्यों पूछ रहे हो, उसके लिए आप सस्पेंड। अगर इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो ये उनको तय करना है पार्लियामेंट चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन इस तरीके से मनमानी इस बार नहीं चल पाएगी। Is that a beneficial situation for the opposition? Opposition के लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि जो एक एजेंडा ड्राइव नहीं कर पाता था लास्ट टाइम, मुझे याद है कि सीताराम येचुरी का एक अमेंडमेंट था जो कि राज्यसभा में पास हुआ था, एंड दैट वाज द लास्ट हाई पॉइंट बस फॉर द ऑपोजिशन, जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे एक अमेंडमेंट आपने पास करवा दिया था। और मोदी सरकार को मतलब वहाँ पर तो, और वो अमेंडमेंट पास होते ही प्रधानमंत्री मोदी जी उठ के चले गए पैदल, मतलब हाउस से। अब आप तो जानते ही है, लेकिन वो अब उस तरीके की वातावरण लानी है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शासक पार्टी की, जिम्मेदारी उनके ऊपर है। डू यू थिंक कि ये सस्टेनेबल है टीडीपी नीतीश भाई? यार देखिए, अभी तक तो फोकस टीडीपी और जेडीयू का है अपने अपने स्टेट्स की कंसोलिडेशन। ओके, टीडीपी को कंसोलिडेट करना है, YSRP कांग्रेस का जितना भी जो सर है उसको हटाते हुए खुद को कंसोलिडेट करना उनकी राज है। दूसरी ओर बिहार में जहां नीतीश बाबू का सवाल है, वो चाहते हैं जल्द से जल्द असेंबली चुनाव हो, फिर से वो मुख्यमंत्री बन जाए, ताकि अगले 5 साल तक उनके लिए कोई चुनाव तो अभी दूर है। चुनाव तो दूर है। हाँ, वही तो आप चाहते हो जल्दी हो जाए अब इस माहौल में। लेकिन कुछ थोड़ा सा दिल में दर्द होता होगा नीतीश बाबू को देख करके बीजेपी। अब क्या करें, यानी मोदी जी के उन्होंने पैर छुए सेंट्रल हॉल में, ये तो अजीब लग रही थी हमें भी। और उसमें नालंदा में उन्होंने 5-6 बार बोला कि बहुत अच्छा लगा आप आए। नहीं, आप देखिए, वो नीतीश बाबू से इसी कमरे में मिलते थे, यही पर मुलाकात होती थी। लेकिन एक बात आपको, आप जो कहे बिल्कुल बात सही है, बुरा तो लगा होगा, लेकिन अब आदत भी बढ़ गई कि 9 बार तो कर चुके हैं, 9 बार कर चुके हैं। यानी मिस्टर गयालाल जो बिहार हरियाणा के थे, 15 दिन में ही स्विच्ड पार्टीज थ्राइस, तो नीतीश बाबू ने तो बेंचमार्क सेट कर दिया कि दिस इज द पॉसिबिलिटी। बस एक रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड उन्होंने सेट कर दिया। अभी सरकार बनने के रिजल्ट के बाद अब आपने बात किया नीतीश जी से? नहीं, सरकार भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, बात सरकार बनने के बाद बात नहीं की। नहीं, सरकार बनने से पहले, रिजल्ट के और सरकार बनने के बीच में। नहीं, जब वो छोड़ के चले गए उस तरफ, तब हुई थी बात। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्या मतलब बोले? बस आप लोगों ने हमको सही ट्रीट में किया, मतलब सवाल क्या बोलेंगे क्या, मतलब सबको पता है कि वो उनको लग रहा था कि मोदी जी के साथ जाने में फ़ायदा है, और अगला जो मुख्यमंत्री बनना वो उनके लिए मुख्य था। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेज पे कॉन्सेंट्रेट करना उनके लिए खतरा था, RJD और तेजस्वी यादव, बिकॉज दे वर ईगर टू गेट देयर मैन इनटू द चीफ मिनिस्टर सीट। तो उससे बचना है, तो अब यही रास्ता है। मगर आपने कन्वीनर क्यों नहीं बना दिया उनको? प्रधानमंत्री के फेस बना देते। प्रधानमंत्री सम्मान नहीं किया, आपको कहा ना, तो उनका मतलब तो यही था ना। नहीं, वो यही था, अगर कन्वीनर बन के ये काम करिए तो, कन्वीनर बन के, यानी आप कह रहे हैं कि कन्वीनर बन के चले गए उधर, तो पूरा इंडिया को साथ लेके
भाई तो क्यों क्यों वो खतरे में हमें डाल रहे हो? You were afraid that Nitish may be made a convener and then he will switch sides. Then that will be much more तब तो disaster. आपका इंडिया डूब जाता. हाँ, finished. वो तो जाता ही. ओके, सो बट आपको क्या लगता है कि कितना एक हनीमून पीरियड कितना चलेगा ये? देखिए साहब, और इज इट अ लॉन्ग लास्टिंग वन? no, it's not a long lasting one. But it all depends on, there is one, this honeymoon period, where conflicts will start emerging soon. The second one is also a period where the danda and the stick will also be being used. The ED, the IB, I mean... Against these two? No, against these two, or their friends, or their close aides, or what it is. We'll have to wait and see how that is utilized. Now, it will be a combination of factors. Because it's not going to be easily, they're not going to give away the power they have acquired, the BJP. So, it won't be a normal honeymoon period कि भाई इन्होंने विड्रॉ कर लिया, हट गया, ये होगा. तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा संघर्ष होगा, बहुत बड़ा तनाव होगी. यानी ये दिल्ली की तरह से कि आप अंदर आ गए हैं मगर जाना बड़ा मुश्किल होगा. ये अभिमन्यु वाली खेल है. अभिमन्यु वाला खेल है. नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू चक्रव्यूह में फंस गए हैं. बस चक्रव्यूह के अंदर घुस गए हैं. अब जो है निकलना है. यानी ये पुराने टाइम जैसा कोalition नहीं है जिसमें आप लोग और कांग्रेस पास मास्टर्स थे कि यार अब हम नाराज हो गए जा रहे हैं. ना ये इस बार तो एक बार चले गए अंदर, वहाँ से निकलना मुश्किल है. वन आई वांटेड टू, व्हेन आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस अकोमोडेटिव आई, तो मेरा एक पॉइंट दिमाग से उतर गया. आप यानी कह रहे हैं कि वो जो कांग्रेस की पॉलिसीज थे, आपने एक व्यंग्य किया था अपने फेयरवेल स्पीच में, जब आपने कहा था कि आपको जयराम रमेश सीताराम ओबिचुरी बुलाते हैं, तो आपने कहा था कि जयराम रमेश की पॉलिसी पे अगर कांग्रेस चली तो जयराम मोर्चुरी हो जाएगी. बिल्कुल. तो क्या वो उस पॉलिसी से एक चेंज आया है? उस पॉलिसी से चेंज आ रहा है, लग रहा है कुछ लोगों में नहीं आया. जयराम यही तो वो बोलता है सीताराम ओबिचुरी बोलता हूँ मैं, तो हम बोल देते जयराम मोर्चुरी. और वो जो पॉलिसीज अभी भी मतलब उनका हैंगओवर है उसमें, लेकिन अब जो है ग्रेटर एकोमोडेशन नजर आ रहा है पॉलिसीज पे. क्या ये राहुल के लिए एक बैटल होगा? बिकॉज देयर आर स्टिल चिदम्बरम्स एंट्रेंच्ड इन द पार्टी. कांग्रेस नीड्स देम. कांग्रेस को जरूरत है. यानी चिदम्बरम साहब वही हैं जिनके साथ एक समय पे बैठ करके आपने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था. यानी द लेफ्ट एंड राइट हैव नेवर बीन टुगेदर लाइक दिस. यानी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का ऐसा संगम नहीं देखा गया. जब ज़रूरत के मौके की ज़रूरत के हिसाब से कैपिटलिज्म देखती है कि वो कितना आगे जा सकता है सोशलिज्म को साथ रख के. सोशलिज्म देखता है कि कितना आगे सोशलिज्म जा सकता है. ये आपने यूनाइटेड फ्रंट का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था 96 में. जी. तो यानी कैसा था आपका एक्सपीरियंस? वो नहीं, एक्सपीरियंस तो बढ़िया था. यही तो थी कॉन्फ्लिक्ट्स. वो कहते थे कि हमें प्राइवेटाइज करना है पूरा. हमने बोला बिल्कुल सवाल ही नहीं. तो चलिए लॉस मेकिंग कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे. तो हमने क्या, वो भी सवाल पैदा नहीं होता है. लॉस मेकिंग कंपनीज को एग्जामिन करिए, कैन दे बी टर्न्ड ओवर. ओनली दोस्त दैट कैन नॉट बी टर्न्ड ओवर, उसके बारे में देन वील हैव टू कंसिडर केस बाय केस. तो इस तरीके की नेगोशिएशंस होती थी. एक ही एग्जाम्पल दिया था मैंने, मतलब कहाँ से शुरू कर रिटेल वगैरह बहुत ऊंच होता था. बस इसी तरीके से चलती थी. यानी मुझे याद है कि आप लोग 4 मीटिंग करते थे स्टीयरिंग कमेटी की, पेट्रोल का कीमत 25 पैसा बढ़ाने के लिए. वही. अब आप देखिए कितने रुपए बढ़ा दे आपको 2 मिनट में खत्म. नहीं, 5 रुपया कम भी करते हैं, यानी चुनाव के पहले. लेकिन करते हैं. आप लोगों के जैसा इंडिसीजन नहीं है. चुनाव के बाद कितना बढ़ा देते हैं? नहीं, वो बात अलग है, लेकिन डिसाइसिव तो है. नो, बट आपको ये मानना पड़ेगा डिसाइसिव सरकार है. यानी स्टीयरिंग कमेटी, कॉमन मिनिमम, ये सब नहीं बनते हैं, बना देते हैं. नाउ अभी आगे का भविष्य, अभी इस रिजल्ट के बाद से, सरकार बनने के बाद से बातचीत चल रही है कि अजीत पवार जी नाराज हैं, वापस जा सकते हैं. तो ठीक होगा? देखिए, अब ये कल ही शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों ने अपने अपने भाषणों में कहा जो लोग हमें छोड़ के गए उनको वापस नहीं लेंगे. ये ऐलान किया महाराष्ट्र में. अब इसमें ये राजनीति है.
इसके अंदर कोई डेफिनेटिव व्यू जो है आप लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन ये डेफिनेटली एक पीरियड ऑफ अनसर्टनिटी है। बहुत अनसर्टनिटी इसलिए है, कई सारे लोग जो छोड़कर गए शरद पवार जी को अजय पवार जी के साथ इस उम्मीद से कि कुछ फ़ायदा होगा, जब नहीं हुआ वो वापस आना चाहेंगे। सेम थिंग विद उद्धव ठाकरे जी। नो हाउ दिस विल प्ले आउट डायनामिक्स वो अभी देखना है। एंड बिकॉज अजीत पवार ईमानदार आदमी है। अभी ये तो उसीलिए तो वो केस डाल के उनको ले गया भाई दूसरी तरफ। उसलिए तो उनके ऊपर केस लगा के जिस वजह से वो डिफेक्ट किए। नहीं, आपकी नज़र में ईमानदार है कि नहीं? मैं कैसे बताऊँ, जो उनके ऊपर जो ईडी का सीबीआई का जो केस था उसी के डर में तो आ गया। वही तो हुआ ना। नहीं, क्योंकि लेफ्ट की ये मजबूरी है। क्या है कि लेफ्ट को भी एक बीजेपी का एक लॉन्ड्रोमैट है, एक दूसरी साइड का भी लॉन्ड्रोमैट है कि अगर शरद पवार के साथ अजीत पवार हैं तो वो ठीक है, चलेगा। अगर शरद पवार लीडर है, उनके पीछे जो भी है हम नेगोशिएट करके टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार की वजह से। और जो भी हमें कहना है करना है उनके थ्रू होगा। यानी बट दैट वे यू आर गिविंग ए ग्रेट क्लीन चिट टू इवन शरद पवार। नहीं, that is natural. That is one of the casualties that I have to undertake in this sort of politics. With I mean, in this sort of a situation when there is a larger cause that has to be achieved. If today the task is to save our constitution, democracy, etc., 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 I'll have to go with anybody and everybody who'd want to willing to come in that direction. पिछले 1996 से तो बड़े एफर्मेटिव एक्शन के तौर पे लेफ्ट ने निर्णय कर लिया है कि हम देश बचाएंगे। संविधान बचाना और देश बचाने का जो सुबाड़ी है वो लेफ्ट को मिला है। अगर आई लुक एट फ्रॉम 2004, यानी ये पूरा जो लेफ्ट सपोर्टिंग इकोसिस्टम इस देश का आज भी है, वो ये कहेगा कि आप 61 सीट्स पे थे, 43 फॉर सीपीएम और सारे आपकी लेफ्ट पार्टीज का ब्लॉक मिला करके लेफ्ट ब्लॉक वाज 61, 44 इंक्लूडिंग सोमनाथ, इंक्लूडिंग सोमनाथ, बट यू गिव सो 61। वो समर्थन वापसी में नहीं आए थे आपके साथ। यानी वो अलग दास्तान है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन 61, तो उस सिचुएशन से अगर हम आज देखें तो आपने 96 में लोकतंत्र बचाया, ठीक है, आपने 2004 में लोकतंत्र बचाया ना, उसके बाद आपने 2024 में लोकतंत्र बचाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन की रेड डायरी जो है, वो जो रेड आजकल कॉपीज बहुत दिखाई जा रही हैं, वो आई थिंक सबसे ओरिजिनल कॉपी मेरे पास थी, मैं राज्यसभा में दिखाया था। हाँ, तब लोग मांगने लगे मेरे से कि भाई ये कहाँ मिला आपको। नहीं, वैसी एक लाल किताब मार्क्स एंड एंजल्स की भी लिखी हुई है। नहीं, माओ सेतुंग की है। माओ सेतुंग की भी है। तो क्या है कि वो थॉट जो है वो वहाँ का। लेकिन मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ, मेरे बैग में है अभी। मैं ये कहना चाहूँ, हाँ, वी कैन सी इट। नहीं, वो तो अभी 2019 में 3 सीट, ठीक है, आपका जो सिचुएशन है, यानी 1996, ये मैं प्लास्टिक में रखता हूँ ताकि खराब ना हो। दिस इज द कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही दिखा रहे हैं सबको आजकल आप लोग। हम तो ये भाई राज्यसभा में पहली बार दिखाए थे, उस जमाने के चेयरमैन साहब बोले थे ये क्या है, तो बोला सर ये कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी क्या आपके पहले लोगों ने वो देखी नहीं थी? मैं क्योंकि हम आज, अगर हम आज 24 तारीख है, हम 24 पे बैठे हैं, तो 25 जून 1975 को इसी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को तो देखिए, एक वकील है गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने ये निकाला ये कहते हुए कि हमें जब जाते हैं वकालत करने, कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े बड़े वॉल्यूम्स उठा के ले जाने की जगह वो बोला भाई एब्रिज वर्जन में निकाला, उन्हीं के नाम से है ये। और वो जब निकाला था, क्योंकि वो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा था, उनके दोस्त जो हमारे क्लासमेट रहे हैं स्टीफन से लेकर, जो वकील है, तो उन्होंने कहा कि ये इट्स वेरी यूजफुल। नहीं, ये सबके लिए यूजफुल है। यानी इस देश में सड़क पर चलने का हक भी इसी से आ रहा है। तो ये आपने कभी कांग्रेस को दिखाई? अरे 1975 में हाउस में दिखाया। नहीं, 1975 में, यानी कल है उसकी एनिवर्सरी नहीं, उस समय आया नहीं था। अच्छा, छोटी डायरी नहीं थी इसलिए आप कांग्रेस को दिखा नहीं पाए।
क्योंकि अब उस समय था नहीं तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी तो थी, कॉन्स्टिट्यूशन का भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितनी बार नहीं दिखाया उनको। बट दैट वाज अ ग्रेट पीरियड सीता, आई नो, दैट वाज अ पीरियड व्हिच सॉ द राइज ऑफ सीताराम येचुरी। कॉन्फ्रंटिंग मिसेस गांधी डायरेक्टली। क्या हुआ था वो, विल यू रिकॉल इट फॉर द व्यूअर्स? वेल ये हुआ था कि अब इमरजेंसी हट गई एंड शी लॉस्ट द इलेक्शन, बट शी वाज द चांसलर ऑफ JNU। सो उन दिनों में ये रूल था कि द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स ऑटोमेटिकली द चांसलर। सो वी सेड नो, दिस कांट हैपन मैन, बिकॉज emergency excesses etc etc. So in the union we passed a resolution, a 4-page a litany of all that's happened, सारे आरोप जो उनके ऊपर थे, सब कुछ जो किया उन्होंने यूनिवर्सिटी में, वो लेके हम कहे कि पूरा यूनिवर्सिटी मार्च करके गए उनके घर पे। और वो उन दिनों में वो मदर टेरेसा क्रिसेंट पे, वो वेलिंगटन क्रिसेंट कहा जाता था तब, तो वहाँ पर उनका घर था। तो हमने यही सोचा कि जिस तरीके से अरेस्ट वारंट हमारे हॉस्टल के कमरे के बाहर छाप देते थे, वो उन दिनों आपके बड़े सारे स्टूडेंट्स भी अरेस्ट हो रहे थे, और वो हॉस्टल के दरवाजे के ऊपर उसको चिपका देते थे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट अंडरग्राउंड होता था, मतलब दे कुडंट कैच हिम। तो हमने सोचा हमें भी वही करना होगा, इंदिरा गांधी जी के कोटे पे, मतलब वहाँ पे चिपका दे, नोटिस चिपका दिया आपने, मेमोरेंडम चिपका दिया। हम गोंद लेके गए, लाई वाई सब कुछ मतलब तैयार हो गए। लेकिन जब वहाँ पे गए तो VC शुक्ला साहब थे, आई थिंक, तो उन्होंने बोला क्या है, तो मैं बोला ये है, ये मेमोरेंडम देना है मैडम को। तो ऐसे रुकिए, तो अंदर गया, बाहर आया और बोले कि नहीं 5 लोग आ सकते हो, मिल सकते हो। मैं बोला 5 लोग नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी आई हुई है, या आएंगे तो पूरे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ये यहाँ पे चिपका के चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला रुको। फिर अंदर गए तो अचानक देखा कि मैडम गांधी खुद आ रही है बाहर, वो खुद गेट पे आ गई। That was very yeah, she came to the gate, so everybody was surprised naturally. So then she said, what is it? I said, ma'am, we come here. You were the neta of that group? Yeah, I was the president of the students union. So I said, we come here to hand over a memorandum. He said, what does it say? तो डर नहीं लगा? इंदिरा गांधी awesome type personality. And just imagine her courage also to walk out and come in front of about 600 students, at least 600 odd then. And then she came, and no police bandobast of anything of the nature that you see today. So then he said, what is there in the memorandum? I said, we want you to resign as the chancellor of the university. ये आपने प्रधानमंत्री को बोला देश की? और वो you want me to resign? He said, yes, you are the chancellor of the university, and after all this that's happened in the emergency, I don't think it will be correct for you to continue, and we would want you to resign. He said, that's what the memorandum is. So he said, read it out. अब परेशानी की थी, उसके अंदर इतने गाली भरे हुए थे, वो रीडिंग इट आउट, बट आई रेड इट आउट। पढ़ा पूरा पढ़ा। शी took it in a spirit, but one thing, she always had a constant smile on her face all through. When you speak to somebody like Rahul Gandhi, does he feel embarrassed about emergency? Because when the BJP attacks the Congress on emergency, you have very little to say because आप लोग भी जेल वेल गए, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है? नहीं, वो डिस्कम्फर्ट तो है उनको, लेकिन दे गेट अवे बिकॉज राहुल वाज टू यंग देन, तो यानी वो उतना लेगेसी में आया नहीं। लेगेसी में गांधी नेम आ गया, मगर इमरजेंसी का ब्लेम नहीं आता, इतना ट्रैवल नहीं करता है वही। और दूसरी बात ये है कि वो ऑलवेज यही देते कि बी अपोलोजाइज्ड। अच्छा, नो, बट अगर मोदी जी कल अपोलोजाइज कर दें वही, लेकिन उनका कहना है कि ये करेगा ही नहीं। अच्छा ओके, नाउ लेट्स कम बैक। तो ये जो एक सिचुएशन है जिसमें 2 बार सरकार बना दी, और इस बार भी अगर रिजल्ट 20-25 सीट इधर उधर होता तो CPM फिर सरकार बना रही होती। यू नो दैट किंग मेकर सीताराम येचुरी। अरे नहीं साहब, इस बार इतना स्ट्रेंथ नहीं है ना हमारी जितना हम नहीं, लेकिन नो, आई थिंक वो एक बात, विल कम बैक टू इट, मगर इंटरेस्टिंग फैक्ट है बनाते। तो इसमें आपका जो डिक्लाइन है, आप नाउ लुक एट द पूरा जो हिस्ट्री अनफोल्ड कर रहा है, 60 to 16 to 9 to 3. No, it's all, you see, when the Indo-US nuclear deal came, and that was an issue which was not part of the Common Environment Program, and it shouldn't have come onto the agenda at all. But the Congress insisted on bringing it,
And since it was not there, part of the common minimum program, and also since it's an issue on which we are very sensitive of surrendering India's sovereignty to US Foreign policy especially. and losing your independent foreign policy. So that is something that we said that we cannot accept. No, but you had negotiated a compromise. We had negotiated a compromise, but that, I mean, could have worked out or could not have worked out. Now in retrospect, you can't really evaluate that. But the fact remains that once that happened, which led to this unfortunate rupture in the UPA, where the left support was withdrawn, then what happened? These circumstances were created for the Congress and the Trinamool Congress to unite. So the index of opposition unity in Bengal became one. No, not just Bengal, even in UP. Mulayam Singh Yadav chose to go with the Congress. Congress, yes. Yeah, even in UP. But for us, most importantly, in Bengal at that time. And that index of opposition unity becoming almost one, that cost us the thing. It cost you in Bengal then? Bengal. And we could never really recover from the Bengal thing, because that was based on a sense of politics of terror. I mean, with 378 people we lost in that one Jhatka. And then for that, from there to, regain became a difficult process. So that's why you find this decline. Kerala has always been off and on. One way, once this. I'll come back to Kerala. मगर ये जो आपके historic blunders की, you have a penchant for it. यानी मैं 3 तो अभी गिना देता हूँ. 1996, you were in a room with Jyoti Basu and Harkishan Singh Surjeet जी. क्या ऑफर आया था आपको? जी, ज्योति बाबू को प्रधानमंत्री बनाइए. बनाया? किसने मना किया? सेंट्रल कमेटी. ओके. उसके बाद सेंट्रल कमेटी ने डिसाइड किया कि न्यूक्लियर डील पे छोड़ के दुकान चले जाएंगे. करेक्ट. उसके बाद तीसरा, यानी सीताराम येचुरी को तीसरा टर्म नहीं देंगे. अरे नहीं, वो यानी आपको पार्लियामेंट में आवाज होना जरूरी है कि वो मेरी किताब के कानून में लिखा हुआ है कि मैं 2 बार से ऊपर नहीं दूंगा. अब वो नियम है भाई, अब क्या किया जाए उसको. ये आपके यहाँ मोदी राहुल गांधी टाइप नहीं, कल्चर नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो हो जाएगा. वो नहीं है ना, कलेक्टिव है हमारा. यानी कलेक्टिव ब्लंडर्स. नहीं, ब्लंडर्स नहीं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. ओके, डिसीजन मेकिंग. नाउ द सेकंड चैलेंज जो मैं आपके लिए देख रहा हूँ, एक अंग्रेजी फिल्म आई थी स्लीपिंग विद द एनिमी. यानी अगर उसको उठा के टेम्पलेट लगा दूं बाहर तो बिल्कुल फिट है. यानी कि आप हाथ खड़े दिखते हैं रैलीज और मीटिंग्स के बाद में, और उनके साथ जिन्होंने आपको वेस्ट बंगाल में लगातार बाहर किया, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी. क्या नाम है पार्टी का बंगाल में? तृणमूल कांग्रेस. आई फॉरगेट द नेम. गुड दैट यू रिमाइंडेड मी. सो ये क्या करेंगे? ये डिलेमा कैसे रिजॉल्व होगा? डिलेमा कैसे? स्लीपिंग विद द एनिमी, तो दैट वी आर नॉट, बिकॉज वी आर नॉट विद द तृणमूल. No, but in the India bloc, you are together. India bloc, they are also there, we are also there. So it is not in that sense. If we had gone with the Trinamool in Bengal, I can understand what you're saying. But as a part of the larger bloc, because what was the understanding? In order to stop the destruction of the Indian constitution and democracy and the democratic rights of the people, and for the improvement of the people's livelihood, etc., it's absolutely essential that the Modi government be separated from controlling state power. अगर ये करना है तो whoever is willing to do that or participate, contribute in doing that, are most welcome. तो उसके अंदर ये भी आ गया तृणमूल कांग्रेस. तो I mean, whoever wants to come. But the point is, we are not going to go into any sort of an understanding with them. That's why डायरेक्ट नहीं करेंगे. यानी हम सीधे हाथ नहीं पकड़ेंगे. 3-4 लोग बीच में खड़े हो तो पकड़ लेंगे. वो भी आ गए, हम भी आ गए, हम एक ही बस में चल रहे हैं. मगर थोड़ा सा तृणमूल को बेनिफिट नहीं करता है. कैसे? क्योंकि इवेंचुअल परसेप्शन में ये होता है कि ये तो बीजेपी के खिलाफ जो वोट है इनको दे दो. नहीं, वो उसका फायदा वो उठाना चाहते हैं. तो तृणमूल और उठाए भी, मतलब ये नहीं कि नहीं उठाया, मतलब वो भी फायदा उठाया. उसके अंदर ये डबल एज्ड वेपन है ना. कभी कभी वो बीजेपी के कई सारे सवालों पे, जैसे ये CAA पारित हुआ, लॉ जब पास हो रहा था पार्लियामेंट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये लोग एब्सटेन हो गए, तृणमूल कांग्रेस. तो वो भी एक मैसेज गया कि ये इतना रिलायबल नहीं है.
सो इट ऑल डिपेंड्स, इज अ डबल एज वेपन, क्योंकि वो दोनों तरफ खेल रहे थे। दैट डबल एज वेपन, ये बंगाल में जो वायलेंस का स्पाइरल है, ये सबसे ये बड़ा। यानी ममता बनर्जी कहती हैं कि पहले सीपीएम करता था, अभी नहीं है। These rapes of women, attacks on people who voted for somebody else. देखो भाई, अगर पहले यानी सीपीएम, झूठ बोल रहे होंगे बीजेपी और बाकी लोग जिनको अटैक नो 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 झूठ नहीं, हम बोलते हैं ये सब। हमारे वहाँ का एमएलए हमारा था जब तृणमूल आने से पहले। अरे ये अगर हमने ये सब करते थे पहले, जो आरोप है, तब तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होती नहीं। आए कैसे चीफ मिनिस्टर अगर ये सब होता था इतना? इनफैक्ट उनके ऊपर अटैक करने वालों में शुरू में कांग्रेस पार्टी के सज्जन थे। अरे ये सब एक कल्चर जो ले आए ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार में आने के बाद। और ये जो है आरोप लगाना कि पहले सीपीएम करती थी, अगर सीपीएम वही करती थी तो आप नहीं होते भाई मुख्यमंत्री। अब सवाल ये है कि ये जो हिंसा का जो राजनीति लिया है वो अपने हाथों से बाहर चली जा रही। ये ऑलवेज, दिस इज द लॉ ऑफ अनार्की, दिस इज द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट व्हाट यू कॉल। ये कार्डर्स हैं कि ये पार्टी लीडरशिप से हारा है। अब ये पार्टी लीडरशिप के प्रोत्साहन से कार्डर्स है, और एक बार उनके हाथ से वो उससे भी आगे चली जाती। और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तमाम टीएमसी नेताओं पे, ये कंकॉक्टेड है। सही है वो एकदम। हम तो पहले से ही बोल रहे थे, वो रिक्रूटमेंट के सवाल हो या उसके अंदर बहुत सारे जो बाकी सब भी जितने भी सवाल हों, उसके अंदर ये भ्रष्टाचार तो बिल्कुल सही इल्ज़ाम है। अब हम केरला पे आ जाते हैं। केरला, आप कह रहे हैं कि बंगाल में हम उनके साथ नहीं लड़े, मगर कांग्रेस के साथ तो आपने चुनाव लड़ा देश भर में, साथ में थे आप। लेकिन केरल में तो कांग्रेस मानी ही नहीं है। अब वो लोकसभा में आपको वर्चुअली साफ कर दिया उन्होंने। वो उनसे पूछना है। नहीं, मैं कैसे पूछूंगा सर? राहुल गांधी बैठते आपके साथ है, आप मुझसे पूछो। मेरे से तो मिलते भी नहीं है। अगर अभी कहे कि बोले ट्रेडिशनली तो यही रहा है, ट्रेडिशनली यही रहा है कि केरल में आप जो है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में है। दैट इज द ट्रेडिशनल पोलराइजेशन हर समय रहा, आज की बात नहीं, 60 साल से। तो वो ट्रेडिशनल पोलराइजेशन चलते आ रही है। कभी एक बार 2004 में हमें मिले 18-20 में से, अब इस बार उनको मिले 19-20 में से। लेकिन सवाल कांग्रेस का प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है? बंगाल में इंडिया ब्लॉक के लोग आपके खिलाफ हैं, वहां आप आगे नहीं बढ़ने दे सकते। केरल में इंडिया ब्लॉक का मेन कंपोनेंट आपके खिलाफ है, और जिन जगह पे इंडिया ब्लॉक का मेन कंपोनेंट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां वो आपको जगह देगा नहीं। समाजवादी पार्टी आपका एलाई है, उसने तो नहीं कहा कि कानपुर और बनारस आपकी सीट होती थी साहब, ट्रेडिशनल। हु वांटेड इन 57? पहली बार कानपुर और बनारस में लाल सलाम किसने लिखा था? अरे वही टोटली हमारे ही। तो फिर आपको तो दिया नहीं सीट। तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप इन जगह से गायब हो गया, और आपको ये, आपसे तो मजे ले लेते हैं मगर आपको जगह नहीं देते हैं ये लोग। अब ये एक सवाल है, ये गंभीर सवाल, जिसके अंदर, जिसके ऊपर काफ़ी कुछ अब ये संघर्षें होंगी। और ये बात ना सिर्फ हमारे से, लेफ्ट के अंदर भी ये बात, बाकी लेफ्ट पार्टीज़ के अंदर भी ये बात उभर कर आ रही है। क्या चीज़? सीपीआई का भी यही कहना है कि हमसे पूरी मदद ले लेते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है। तो चलो इस बार राजस्थान में उन्होंने गरीबत मतलब हमें वो सीकर वो देना पड़ा, क्योंकि वो हालत ऐसी थी। अगर हम और आप लड़ते तो बीजेपी जीतता, वो वास्तविकता था। तो अब ये एक सवाल है, ये सवाल को हमें, लेकिन इसके पीछे भी एक मुख्य बात यह है कि जब तक हम अपनी अंदरूनी ताकत नहीं बढ़ा पाते, ये भी बहुत बड़ा वीकनेस रहा। मगर आपका प्रॉब्लम है कि आप प्रैग्मेटिक हो या पॉलिटिकल हो। आप प्रैग्मेटिज्म में चलते हैं कि बीजेपी को हराना है मुझे, मगर उसका सिनोनिमस ये हो गया है कि लेफ्ट पीछे होता जाएगा। नहीं, अब उसको आपको बिहार में जगह, आपकी, देयर वर वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ बिहार, द लैंड ऑफ मिलियन म्यूटनी, एग्रेरियन म्यूटनीज, जो आपकी फर्टाइल जगह थी। उत्तर प्रदेश, कानपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट सारी आपके थे। अब इंडस्ट्री नहीं है ना भाई, ये भी तो प्रॉब्लम है। अगेन स्लीपिंग विद द एनिमी। 93 में किसने आपकी पार्टी का, सीपीआई का पूरा कार्डर किसके पार्टी में गया?
समाजवादी CPI का गया ना, हम तो बच गए, लेकिन आप बच गए, हाँ, वही लेकिन है। वाम तो कमजोर हुआ. कर बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। But hasn't this pragmatism and political decline, because eventually politics is not for charity. यानी आपके बैंक में कितना पैसा है? मेरे बैंक में देखना पड़ेगा। कमीज अपने आप, 5-6 कमीज अपने आप खरीदते हैं कि सीमा buys it for you? या सीमा बेसिस ऑब्वियसली। तो Who is bearing your लेकिन- expenses largely nowadays? नहीं, खर्चा तो देखो भाई, हमें जो मिलता है 39 रुपये 1000 मिलते हैं मेरे पेंशन, 2 टर्म का वजह से. उसमें से आधा पार्टी को चला जाता है, तो हमें बचता है 20,000। और जो अपने खर्चे होते हैं, अभी जानते हो, मतलब अपने आदतों के खर्चे होते हैं, उसके लिए वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोबाइल भी वही खरीद के देती है. हाँ, मोबाइल तो पार्लियामेंट से जो मिल गया अभी तक चल रहा है वो। ओके. पार्लियामेंट से जो मिल गया था वो अभी तक चल रहा है। ओके. नाउ द पॉइंट इज, इस क्राइसिस में क्योंकि आप प्रैग्मेटिक हैं, पॉलिटिकल डेंजर्स को देख करके कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, तो you are not a very attractive entity, political entity for the young and others to join you. Why? On the contrary, I think a lot more are actually reaching out to us now, saying that even in these terms of high levels of opportunism and things like that, careerism, we would like to come and intern with you, we'd like to come and learn certain values and valued politics, etc. So, I mean, there is a shift that I am seeing now. It wasn't, what you were saying is true for some time earlier. But अब यहाँ पे कुछ shift In Bengal, the CPM had 2.08 lakh members in 2017, a number that has come down to 1.6 lakh in 2021. Tripura, 2021, 50,000 have down from 97,000. Only in Kerala, 44.63 lakh in 2017 to 5.27. There is a reason for this also. There is a reason for this also, because we have, after these electoral reverses, we've also said that we have to shed this extra weight, unnecessarily deadwood in the party. नहीं, क्या डेडवुड क्या कह रहे ना हैं? कह रहा हूँ मैं। कोई नरेंद्र मोदी टाइप नहीं 75 फॉर्मूला ला रहे हैं क्या? नहीं, वो 75 फॉर्मूला तो है पार्टी में। पार्टी में 75 फॉर्मूला तो है। तो यहाँ पे ऐसे भी है जो पार्टी मेंबर्स रहे हैं, जो एक्चुअली पार्टी के जो 5 बेसिक उसूल होते हैं, जिसको फॉलो अप करना, वो नहीं हो रहा। तो वी सेड दैट अनलेस यू स्ट्रिक्टली फॉलो what are the absolute duties of a party member, your membership will not be renewed. And in that case, the first year, the figures that you are quoting, there has been a drop in it, Okay, which because is health of the systemic- party is improved. The health of the party is improved. In the health sense- because of age factor. No, in the sense that they are active members now. Okay. So you have shed those who were partial. But yeah, I mean, Indifferent. old, infirm, or sometimes unable to work. Not that they've become anti-communist or something. Okay. Uh-huh. Okay. तो membership उसकी वजह से कम हुआ. But how do you become a magnet for other people? No, in the sense what we say, what कोई are the- क्राइसिस है उसमें? Huh? यानी देश में नीट का एग्जाम्पल ले लीजिए, लाखों बच्चों को इम्पैक्ट हुआ. Absolutely. इस इलेक्शन में यंग बेरोजगार एक बड़ा मुद्दा था. ये तो आपकी खेती है सारी, ये तो बिल्कुल है। तो आपको मिल ही नहीं रहे. क्यों नहीं मिल रहे? अब इस बार में कल देखिए, परसों नहीं, काम वो तो कांग्रेस सपा ले गई यूपी में, बिहार में आरजेडी ले गई माल सारा. नहीं क्या, अरे हर जगह पर जहाँ पे वो यानी बंगाल में आपको नहीं मिला, जहां बंगाल में आपने जिंदगियां बदल दी. वन ऑफ द बेस्ट केसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री. No, absolutely. बंगाल के अंदर भी on this NEET issue, for instance, day before yesterday, all over the country, बहुत बड़े तादाद में हमारे एसएफआई के मतलब एजुकेशन में बहुत लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स आए. अब वो है बेस्ड ऑन द बेसिस. आप लोगों ने कुछ समय पहले फार्मर्स पे बहुत अच्छा एजुकेशन किया था, मगर फार्मर्स को नहीं यूनाइट कर रहे आप. बिल्कुल उसका फायदा यानी आई कैन पूरे देश में ट्रैक्ट दिख रहे हैं. व्हाट इज आम आदमी पार्टी इन पंजाब? आम आदमी पार्टी पंजाब में लेफ्ट की आइडियोलॉजी पे के फाउंडेशन पे और लेफ्ट के वास्ट ट्रैक्ट्स के कार्डर को लेकर के बनी. वास्ट ट्रैक्ट देखिए, उसके पीछे एक और भी कहानी है. खैर वो किसी और टाइम पे सुनाइए. थोड़ी सी कहानी बताइए. डायरेक्ट हिंट में मत बताइए. नहीं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी. मैं बताऊंगा आपको. वो अभी अच्छा, कोalition धर्म कहता है कि नहीं बोलो सहयोगियों के बारे में. बताइए. लेकिन देखिए, ये हर जगह पर अब देखो,
रीजनलाइजेशन भी हुआ पॉलिटिक्स का। अब आरजेडी हो या बिहार में या एसपी हो यूपी में या अब के या फिर आप हो दिल्ली और मतलब आपके पंजाब में, तो इस तरीके की मतलब इसको भी ओवरकम करना ज़रूरी है। ये है चैलेंजेस है फ्यूचर के लिए। कास्ट। मगर एक बात बताइए आप मुझे, यानी ये बात तो हम करीब 25 सालों से आपस में हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि आप शुरू हुए थे क्लास स्ट्रगल से, मगर आपको लगा कि देश में जो पुअर क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस हैं, वही लोअर कास्ट ही हैं, तो आपने कास्ट की लड़ाई में अभी आ गए आप, लेकिन उस चक्कर में आप फंस गए कास्ट ग्लैडिएटर्स के चक्कर में। नहीं। हाँ, आपका पूरा पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20 साल का देखें, 25 साल का, तो आप क्लास ग्लैडिएटर्स के साथी बन गए, जो कि आपकी क्लास स्ट्रगल का फायदा उठाते हैं, मगर वोट कास्ट पे लेते हैं। दे डोंट हैव मच टू डू विद क्लास। आई एम सॉरी। वो बात इसी सवाल ये है कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया ओवरलैप, एंड द ओवरलैप इज सच कि दैट अनलेस you articulate also the caste social oppression, you cannot really articulate the question of economic exploitation. They have to go together. And in going together, that combination, there have been certain falterings. So that is what we are trying to overcome in the last 10 years or so. India is a young country. Are you getting younger or older as a party, as an organization? No, now we are getting younger. How? Because ये एक थॉट प्रोसेस है कि ये करना है, करना बिल्कुल थॉट प्रोसेस है और एक कॉन्शियसली किया जा रहा है, जिसका नतीजा निकला है पिछले 10 साल में। एंड नाउ द मेंबरशिप इज एक्चुअली अमंग द यंग इज इम्प्रूव्ड वास्टली, एंड दिस टाइम इफ यू लुक एट द इलेक्शन कैंपेन इन बंगाल पर्टिकुलरली, द ह्यूज यूथ ब्रिगेड। यानी इफ आई एम 60, will you consider me, यानी CPM will consider me an old or young? Yeah, we will consider you middle age. Middle age, okay. Young would be below 40. Okay. And 70 will be? 70 will be old. Veteran. No, okay, I will not say that you are above 70. Now, अच्छा, another focus which एक बीच में आपका आया था, which was very interesting, I think, और इस इलेक्शन में वो इम्पैक्ट दिखा, was assimilation of your Dalit drive. वो एक ड्राइव आपका था जिसमें आप स्ट्रगल्स में दलित को फोकस कर रहे थे। जी, और वो कॉन्शियसली किया, जैसे मैं आपका यूथ के बारे में कह रहा था, ये भी कॉन्शियसली किया गया। दलित अब पॉलिट ब्यूरो में है, दलित हमारे अब MLA जो जीत के आए केरल से वो दलित है, और शायद एकमात्र पार्टी है CPM जो दलित को कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है देवस्वम बोर्ड का केरल में। हमने कहा वो काफ़ी हिम्मत चाहिए मतलब वो काम करने के लिए, वो किया हमने। तो अब ये कॉन्शियसली ब्रेक कर रहे हैं हम, एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी देश के लिए। विल वी सी द लेफ्ट इन द कमिंग डेज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे इस स्टेट में ये एलआई है, अपने लिए लड़ता हुआ दिखेगा? हाँ बिल्कुल देखिएगा। अब देखते रहिए, अब देखना पड़ेगा, वो हालत ले आना पड़ेगा। अब कुछ साल तक तो था, अपने लिए लड़े थे हम हिमाचल में, अपने लिए लड़ते थे। अब आपने एक बार लेट 90s में प्लान बनाया था कि हम एक्सपैंड करेंगे, फिर उसका 2015-15 में आपका नया काम आया था। देखिए आपका एक टर्म है ना बड़ी फेवरेट जो आप पहले भी बोलते थे, कॉन्क्रीट समथिंग, एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशंस। यही दैट इज व्हाट इट हैज टू बी डन। अभी क्या कॉन्क्रीट पॉलिसी एक्शन है? अब कॉन्क्रीट एक्शन हमारी ये है कि आज की इस सिचुएशन में वी हैव टू कंसोलिडेट द लेफ्ट फर्स्ट। पहले लेफ्ट फर्स्ट and then the others. Then the others. The left consolidation is a priority. Okay. CPM, CPI? Yes, that is also a priority. No, in fact, CPM, CPI नहीं, बहुत सारे और भी हैं. CPI ML this time they did very well in Bihar. नहीं मर्जर? मर्जर कर रहे हैं कि नहीं? बहुत साल हो गए. When we were talking when Comrade Bardhan was alive. I know that was always that time. करेंगे. अब we'll move forward. मेरे को 2-3 सवाल छोटे से और हैं. You say that you want to go closer to the people, public से masses में. आपने वेद पढ़ा है? वेद, गीता, रामायण पढ़ाया गया बचपन में हमें। पढ़ाया किसने? हमारे ग्रैंडफादर ने, और वेद पाठ मास्टर जी होते थे हमारी वेद पढ़ाने उपनयनम, मेरे सेक्रेट थ्रेड जो लेती उपनयनम बोलते थे तेलुगु में, वो 11वीं साल में हो गई थी। ओके। 11वीं साल से 15वीं साल तक ये पूरा वेद पाठ करना था।
ओके तो इसलिए दिमाग में आ जाता है। इसलिए तो ये आरएसएस वाले इतने कफा होते हैं पार्लियामेंट में। मैं जब भी उपनिषद वगैरह कोट करता हूँ उनको, वो बोलते हैं कम्युनिस्ट हो गए, ये सब कैसे जानते हो? मंदिर मंदिर भी जाते थे पहले। उस जमाने में हाँ मेरे टिल 15 साल तक तो गए थे। हाँ और ऐसा कोई मेरे पिताजी ने छोड़ा नहीं मंदिर जहाँ पे वो नहीं ले गए। उन दिनों में 1970 में आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ। ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो ये बताइए कि जब आप कहते हैं पॉलिटिकली एक स्टैंड लेते हैं एज अ पॉलिटिशियन कि राम जो है वो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क अबाउट राम, इट्स वी कॉल इट मिथिकल, रामायण एज एन। नहीं देखिए, हम जो एथिकल नहीं, जिसका आस्था है उनमें, अगर आपको बिलीफ है कि वो है और आपका आस्था है, उसकी पूरी हम इज्जत करेंगे और वो अधिकार आपका, उसकी संरक्षण करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप थोपिएगा उसको बाकी लोगों के ऊपर, उसको हम मंजूर नहीं देंगे। कोई ये नहीं कह सकता मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बेहतर है। हाँ, तो इसलिए सवाल ये है कि जहाँ पर धर्म की अपनी रेस्पेक्ट है, उसकी अपनी जगह है, और जो लोगों की आस्था है उस आस्था की पूरी रेस्पेक्ट करते हुए उनकी अधिकार का संरक्षण करेंगे। मगर ये एक टेंडेंसी जो दिख रहा है बड़ा स्ट्रेंज है वर्ल्ड ओवर, दिस राइज ऑफ द राइट। एब्सोल्युटली, ये होना ही था राहुल। ये होना इसलिए था क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरीके की जो हालत आप जो है दुनिया के अंदर इस ग्लोबलाइजेशन की, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन बना रखा, जिसके लीडर है इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, उसका मकसद क्या है? स्ट्रेट एंड सिंपल, नेकेड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करोगे उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता, उतना असंतोष होती लोगों के अंदर। वो असंतोष बड़े बड़े मूवमेंट्स में उभर कर अगर आपकी राज को ही थ्रेटन करे, रूल ऑफ कैपिटल को ही थ्रेटन करे, देन देयर इज ए बिग क्राइसिस। वहाँ से कैसे डाइवर्ट करोगे? एक मोर अथॉरिटेरियन रेजिम्स, राइटवर्ड शिफ्ट। दूसरा, डाइवर्ट अटेंशन ऑफ द पीपल। कहीं पर कहीं पर जेनोफोबिया है, कहीं पर माइग्रेशन है, कहीं पर अपने देश में कम्युनलिज्म है, कहीं पर नेशनल प्राइड है। अब टर्की हो, बोल्सोनारो हो, या आपके मतलब आज इंडिया में हो, या जितने भी देशों में देख रहे हो आप, यूरोप, मगर हिस्टोरिकली भी है, मारिन ले पेन हो, या हिस्टोरिकली वी हैव सीन कि एवरी टाइम देयर इज अ लार्ज इकोनॉमिक स्लम, राइट का एक राइज आता है, मगर दैट इज अ पीरियड फॉर द लेफ्ट आल्सो टू राइज। अब आएगा, देखते रहिए, दैट इज गोइंग टू कम। And now you see the commentaries that have happened in the world that are going on, whether it's South African elections where the ANC was Sweden, in the Nordic countries. No, not but Scandinavia. This later you had the election of the lady president in Mexico, and you had the election in India where the BJP could not get a majority on its own. So there's a noticeable shift that is taking place. The right is not getting that sort of a endorsement. Like it got in the earlier two terms, even in our country. So that is a tendency. But isn't it a worry for you जब एक पार्टी राइट विंग राइज करती है तो वो दूसरे बाकी ब्लॉक्स को भी पुश करती है क्वाजी राइट विंग के लिए? हिंदुत्व, क्लोक द सॉफ्ट हिंदुत्व, because I don't think there are degrees of हिंदुत्व. I think there is just हिंदुत्व. You may cloak it and camouflage it. तो राहुल गांधी अपना यज्ञों पे वो दिखाते हैं जनेऊ, तो आपको वरी नहीं है ये कि राहुल गांधी जनेऊ दिखा रहे हैं और शिव जी के भक्त हो रहे हैं? हम ये कहते हैं कि कम्युनलिज्म को हिंदुत्व का कॉम्बैट आप नहीं कर सकते हो सॉफ्ट हिंदुत्व से। ये कभी नहीं हो सकता है। यू आर एंटरिंग देयर ओन टेरेन। तो अगर करना है तो स्ट्रिक्टली एडहियर टू द सेक्युलर प्रिंसिपल्स। एब्सोल्युटली, सेपरेशन ऑफ रिलीजन। इट कांट बी 50 शेड्स ऑफ ग्रे। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। बस, your personal opinion you have, please you adhere to whatever you want, we'll respect you, but don't mix these two. हाल में देखा कि समाजवादी पार्टी भी मंदिर बनवा रही है। अब कहिए, इस पे ऊपर भी कंपटीशन हो रहा है। Is that a worry? Of course. Because right wing needs this thing, whereas left का ऐसा sui generis rise नहीं हो रहा। इसलिए तो जब हमने मंदिर का इन्विटेशन से बड़ी रेस्पेक्टफुली इनकार कर दिया, मैंने कहा भाई आपका पूरा रेस्पेक्ट है, आपकी आस्था का पूरा रेस्पेक्ट है,
आपके अधिकार का पूरा हम संरक्षण करते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि धर्म को इस तरीके से आपको शासन में या सरकार के साथ या राजनीति में ले आना। इंडिया ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन हुआ था कुछ इस पे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कांग्रेस को आपने क्या कहा, इस पे कुछ कहा था? ये सब बातें हम कह रहे थे, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हुआ था, उससे पहले हम कह दिए। ओके, हाँ, यू वर द फर्स्ट वन टू गो ऑफ द ब्लॉक। एक ये करप्शन का इशू जो है, यानी आप लोग तो खैर बहुत ही रईस पार्टी हैं, क्योंकि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की भी जरूरत नहीं है। अब हमारे अपने पंजाब के जो एक बहुत बड़े ये होते थे ह्यूमरिस्ट, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में मर गए थे, हाँ, क्या नाम था उनका, तो एक दिन चंडीगढ़ में कई सालों की बात, पहले की बात है, जब हवाला चल रहा था, जैन डायरी वगैरह, तो हम चंडीगढ़ में चल रहे थे हमारे पार्टी सेक्रेटरी के साथ, तो उन्होंने देख लिया, हाँ, जसपाल भट्टी थे, हाँ, तो उन्होंने देख लिया, कहता येचुरी साहब आइए। मैं बोला मेरा तो बेटा बिठा दिया, अभी पता नहीं क्या करेगा। तो मंच पे लेके जी, कहते जी देखो जी, ये लोग भी आएंगे आपके पास वोट मांगे, लोगों से कह रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इनको, देखिए इनको राज करने की आदत ही नहीं है। इतनी बड़ी लिस्ट आई है हवाला में, एक भी कम्युनिस्ट का नाम नहीं है, ये तो बेकार है, राज भी नहीं कर सकते हो, उनका नाम ही नहीं है हवाला कांड में। तो भ्रष्टाचार के साथ हमें क्यों जोड़ना, मतलब बंदिश है। यही है लोगों का कहना, बिना भ्रष्ट हुए आप राज नहीं कर सकते हो। आज एक इशू जो बहुत क्रिटिकल इशू है इंडिया के लिए भी, फॉरेन पॉलिसी, और एक पॉलिटिकल इशू राहुल गांधी ने काफ़ी उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया है, और विपक्ष के नेता भी उठा रहे हैं, वो चाइना का इशू है। वो कहते हैं कि चाइना इज द एग्रेसर, देश के तमाम ट्रैक्ट्स पे उसने कब्जा कर लिया है। अब देखिए भाई, वो कौन कह रहा है ये? ना सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना ने कुछ ऑक्यूपाई नहीं किया, हमारे देश के अंदर घुस के आई ही नहीं, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, पीएम ने ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई थी, वो सब डोकला जब हुआ था, उस समय उन्होंने ही कहा था कि कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ अपने देश में, 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं है चीन के हाथ में, उनका खुद का बयान है। नहीं तो अभी आप राहुल गांधी पे विश्वास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी? नहीं, हम कह रहे हैं कि देखिए ये दो देशों के बीच में संबंध की सवाल है, और वो हर समय होते हैं 2 सरकारों के बीच में, और हर समय कांग्रेस की सरकार हो या इनकी सरकार हो, जिसकी भी सरकार, जो सरकार जो कहती है हमसे, वो होता है एक्चुअल बात जो लोग मानते हैं। हो सकता है कि सरकार गलत बोल रही है, ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार हर समय सच बोलती है, हो सके कि सरकार तो एक टाइम पे बोल रही थी कि न्यूक्लियर डील बहुत अच्छी है, तब तो आप समर्थन वापस कर गए थे। वही अब सवाल ये है कि अब ये प्रधानमंत्री कह रही, और ये कहते हैं जो भी हमारे बीच में विवाद है, हम चाहते हैं कि बातचीत के आधार पर हल हो। हमने कहा कि भाई हमारी पार्टी, वो आखिरी पॉइंट आपने जो कहा उसके ऊपर पूरी समर्थन है। यही बात जब राजीव गांधी ने कहा कई अरसों के बाद, जब तोड़ा ये कोल्ड वॉर जो इंडिया चाइना के बीच में जो था, तब उन्होंने यही कहा कि ऑल थिंग विल बी डन थ्रू नेगोशिएशंस। वेरी गुड, वी सेड, एंड वी मेंटेन द सेम पोजीशन इवन टुडे। Resolve these issues, they have to be resolved. 2 big neighbors, and it will impact not only the whole of South Asia but the world, these relations. Two of the largest markets. Yeah. But the point is that they have vested interests who don't want these countries to come together. These freeze of relationship between trading and several other posts which have been created अभी पिछले कुछ सालों में. अब उसके बावजूद भी क्या largest trading partner is China, India का. And you saw yesterday what the CII was saying. You lift this ban on imports from China on particularly the electronic items. The trade industry. What about this Quad? Is that उस एरिया में नहीं जाना चाहिए इंडिया को? Absolutely. उसके अंदर हमें it is not in our interest. अगर अमेरिका चाहती है कि चाइना को काबू में रखना है और इसके अंदर इंडिया शामिल हो जाए उसके साथ, हम कहाँ शामिल हो भाई? हम शामिल होंगे हमारे देश की इंटरेस्ट के आधार पे. Why should we join anything in the interest of other countries? You mean to say it's a trap? Absolutely. You are being trapped into a military alliance. They want to convert Quad into a military alliance, and straight signal is that it is anti-China.
Now a new Cold War is being, generated by the USA, both with the Ukraine, Moscow, this thing, and with the hostility to China. They want to create a new Cold War-like situation in the world, which is not in the interest of the world, and we should not get trapped into it. In any way, that is not in India's interest. And that is what we are saying. We adhere to our time-tested independent foreign policy. And that is in the interest of India. Whatever is in the interest of India, we must adhere to that. Do you think you would like to shape the Congress policy also on it? Will you agree that Congress bhi is मामले में is indulging in a lot of saber rattling? Because foreign policy should not be impacted by saber rattling. Will you like to tone down that saber rattling by Congress? Well, how can we? They also know, they after all run the country in the government for a long time, the Congress party. The point is that we are taking that position saying these are matters for government to decide. Both governments have said they want to resolve it across the table. So let that be. Beyond that, we will not say anything. आपको भी लगता है कि Congress भी eventually, in a lot of its foreign policy positioning, global positioning, is like the BJP? अब देखो, अब Congress, they are claiming that they are exactly the opposite of BJP. Okay. Now, I think Mr. Sitaram Yechury, after speaking to you for so long, जेल गए थे ना आप? जेल वेल गए हैं ना? दो बार गए हैं. Do you think, last question, your days for agitation are here now? Is the left going to be out to reclaim that space it enjoyed? Yes. You're left in one state. Elections are in Kerala in 26. Yeah. You control Bengal, Tripura, Kerala. Yes. We have to regain that space. That is the objective. And I think we are in the process of doing it because a new type of party is being built. Youngsters are coming in a big way, which is the biggest asset. This is your third term? Yeah, third term. As General Secretary. Will you like to go down as a pragmatic leader who built coalitions but was sitting on top of losses for the party? Or will you like to go out with the last one? I have reclaimed my space. Well, I love to. come, what it may be. Congress हारे, लालू हारे, मुलायम हारे, अखिलेश हारे. अगर हम जीते, हम जीतना है ना. That is the main basic ground rule. We have to gain. So that is what we have to achieve. Which is the best way to gain that? वो है सवाल. उसी को लागू करेंगे. One of your favorite poets is Makhdoom Mohiuddin. Yeah. Would you like to say out a share from Makhdoom Sahab's? Makhdoom Sahab को क्या कहने बोले? He was a communist. You remember that? He was a communist. ऑफिस कहीं पे उनके नाम पे है? हाँ, ऑफिस है Makhdoom Bhavan, हैदराबाद में. On this note, that you will be able to revive the left from what is left of the left. Mr. Sitaram Yechury, thank you very much. It's always been a pleasure speaking to you. Thank you to join the hotspot. Thank you. Thank you.